آج جو ٹاپک انشاءاللہ ہم کریں گے وہ ہوگا فعل امر. فعل امر. فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا آرڈر دیتے ہیں. فعل امر کون سا فعل ہوتا ہے؟ جس میں کسی جس کام میں کو کرنے کا ہم آرڈر دیا جائے. کام کرنے کا ہاں، آرڈر دیتے کسی کام کرنے کا آرڈر دیا جائے یعنی پازیٹیو آرڈر ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے تو وہ فعل نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے تو وہ فعل فعل نہیں ہے، نہیں ہوتا. فعل نہیں ہوتا ہے. شاباش. تو فعل امر میں کسی کام کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے اور فعل نہیں میں کسی کام سے منع روکا کیا جا جا رہا رہا منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. یعنی فعل امر پازیٹیو آرڈر ہے اور فعل نہیں ہے. نیگیٹو آرڈر ہے. ٹھیک ہے. فعل امر بھی آرڈر ہے، فعل نہیں بھی آرڈر ہے، لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ فعل امر پازیٹیو آرڈر اور فعل نہیں ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو. نیگیٹو آرڈر. اب آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے فعل امر بنانے کا طریقہ. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. جی، فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ وہ سوری فعل امر کس فعل سے بنتا ہے؟ فعل مضارع فعل کے مضارع حاضر کے کے صیغوں حاضر سے۔ صیغوں سے. ہاں جی. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. اب سٹیپس کیا ہوتے ہیں اس کو بنانے کے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں. یا تھا الف نون. جی عطین. نہیں استاذہ جی، استاذہ جی یہ حاضر کے جو ہیں یہ تو تفعل تفعلان تفعلون یہ نہیں جی جی تفعل تفعل ٹھیک ہے. تفعل فعل مضارع کی جو علامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں نا؟ حذف کر دینا. حذف کر دینا ہے. شاباش. پھر سیکنڈ سٹیپ ہے آخری حرف کو جزم دے دینا. جی، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جزم کا مطلب سکون ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جزم کا مطلب سکون ہو سکتا ہے لیکن ہر وقت جزم کا مطلب سکون نہیں ہوتا. ابھی سمجھاتی ہوں کیا ہوتا ہے. آخری حرف کو جزم دے دیں۔ جزم دے دینا. جزم دے جزم دینا. دے دینا. تھرڈ سٹیپ ہے اگر بیچ میں کوئی حرف علت آ رہا ہے جیسے یقولو، یقولو میں واو آ رہا جی آ رہا ہے۔ ہے، بالکل حذف آ کر رہا ہے. دیں گے. ٹھیک ہے. استسقا ما یصوم حذف کر دیں گے. اشترا یشتری، دیکھیں یشتری را کے بعد حرف علت آ رہا جی آ رہا ہے۔ بالکل ہے. ہاں ان کو حذف کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر حرف علت آ رہا ہوگا تو انہیں کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. حذف کر دیں گے۔ حذف باجی کر جو روٹ ورڈ کا حصہ ہوگا ان کو بھی؟ ہاں جیسے یقول میں دیکھیں نا روٹ لیٹر کا حصہ ہی ہے نا. جی. جیسے کان یکون سے ہم کن بناتے ہیں، قال یقول سے قل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اشترا یشتری سے اشتری بناتے ہیں. جی. اچھا فورتھ سٹیپ میں اگر علامت مضارع حذف کرنے پر، ٹھیک ہے، اگر آپ علامت مضارع حذف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ سم ٹائم پہلا پہلا حرف ساکن ہوگا. سم ٹائم کیا ہو جائے گا؟ پہلا پہلا حرف حرف ساکن ہوگا۔ ساکن. پہلا حرف ساکن. اگر پہلا حرف ساکن ہو جائے اگر پہلا حرف ساکن ہو جائے. ساکن ہو جائے تو آپ نے شروع میں حمزۃ الوصل کا بھی اضافہ کرنا. صحیح.
अगर तो तो फेल इस मुजारे की कोई अलामत होगी तो उसको हज़फ कर देंगे। अलामत और मुजारे की अगर अलामत फर्स्ट होगी, क्योंकि हमने बनाना ही फेल मुजारे से, तो यहाँ पे तो अगर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कि अगर फेल मुजारे की अलामत हो तो हज़फ करना है, क्योंकि हमने बनाना ही फेल मुजारे से, फेल मुजारे के मुखातिब के सिगों से। तो फेल मुजारे की अलामत तो होगी होगी, लेकिन फेल मुजारे की जी अलामत को हज़फ करने के बाद पहला हर्फ साकिन होगा, यहाँ पे अगर की बात आती है कि अगर जी पहला हर्फ उस्तादा जी साकिन आप, होगा। हाँ जी, आपने कहा है कि अगर पहला हरफ साकिन हो, यानी कि कहीं साकिन होगा कहीं नहीं होगा। जी ऐसे ही है। यस, या आधा मुस्कुन, बिल्कुल उसको उस हमजा वस्ली भी दे। उस्कुन। ठीक है, शुरू में हमजा वस्ली का इजाफा कर देंगे। इजाफा। सही। ये कुल स्टेप्स है फेल अमर बनाने के। 3 स्टेप्स है। फेल मुजारे के हाजिर सीगों से बनाना है, या अलिफ नून साइन ऑफ मुजारे को हज़फ कर देना है, और या अगर तालिफ पहले नून, या तालिफ नून तो फिर आता ही नहीं है, फिर तो सिर्फ ता आता है। ता ही नहीं। आता है, हाजिर के सिगे ना, मुखातिब के सिगे हैं जमीन। जी, मुखातिब के सिगे में तो सिर्फ ता आती है ना। मुखातिब के तफालू सीगों में सिर्फ तफालानी ता आती तफालूना, है। ठीक। तफालीना तफालानी तफालना। सही। और अगर ये स्टार्टिंग में साकिन हो तो उसमें हमजतुल वसल की एडिशन करनी है। हम्म। 3 स्टेप्स। फिर मुजारे के हाजिर के सीगे, अलामत साइन ऑफ मुजारे को मुजारे हज़फ को करना है। हज़फ कर हम्म। देना। फिर आखिरी हर्फ को और जज्म दे देना। हाँ, चौथा भी है, आखिरी हर्फ को जज़म दे देना, और उसके साथ हाँ, ये मैंने स्क्रीन पे हमजतुल लिखे हुए वसल का स्टेप्स। इजाफा। देखिए स्क्रीन पे मैंने लिखे हुए स्टेप्स कि अलामत बारीक से मुजारे को बने। हज़फ करना, आखिरी हर्फ को जज्म दे देना, अगर हरूफ इल्लत आ रहे हैं उनको हज़फ कर देना, अगर पहला हर्फ जी। साकिन हो जाए तो शुरू में हमज़तुल वस्ल का इजाफा कर देना। सही। ठीक है, सारा कुछ बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट मिस ना हो। जी। मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, चार्जिंग डेड हो गई है। चलिए जी। हो गया, यहाँ तक सबने नोट कर लिया सारे स्टेप्स, कोई मिस तो नहीं किया किसी ने? जी बाजी हो गया ध्यान है। से बोर्ड को देख के करें, ठीक है, खुद से ना कीजिए, फिर मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलो अब एक एक स्टेप की मैं वजाहत करती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा अलामत मुजारे को हज़फ कर देंगे। वही मैमूना वाली बात की, बनते चूंकि हाजिर के सीगों से हैं, तो अलामत मुजारे कौन सी आ जाएगी? ता ता आ जाएगी। ताज। तफालु तफालानी तफालूना। हाँ, तफालू तफालानी तफालूना, तफालीना तफालानी तफालना। ठीक है। जी। जी। फिर आखिरी हर्फ को जस्म देना, इसकी अच्छी खासी वजाहत है। चलिए जरा हाजिर के सीगे लिखें फिर समझाती हूँ। मैं इधर बोर्ड पे लिखती हूँ अपने पास, आप लोग उधर अपने पास लिखें, शाबाश। जी उस्तादा जी, अगर कोई नहीं लिख रहा तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी हमारे पास, ये बाद में मैं रिकॉर्डिंग तो लिख लूँ। है, रिकॉर्डिंग जी तो मैं ठीक कर है। रही हूँ, लेकिन अच्छे साथ साथ लिख लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, क्लास में ही समझ आ जाएगी। मैं चाहती थी डॉक्टर शाहज़ा का मिस ना हो, लेकिन उनका हो गया। यूसरा की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सो तफ़ालु तफ़ालानी तफ़ालूना तफ़ालीना तफ़ालानी तफ़ालना। सो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने क्या कर देनी है, अलामत मुजारे को हज़फ कर देना। हज़फ कर हज़फ देना है। कर देना। सारे सीगों में से देखिए हमें ता को रिमूव करना है। कर दिया सारे सीगों में से ता को रिमूव। जी। ठीक है, फिर कहते हैं आखिरी हर्फ को जज़म दे दें। अब जज़म से मुराद क्या होती है? अगर आखिर में नून वगैरह नहीं आ रहा, आखिर में अगर नून नहीं आ रहा, जैसे यफ़ालू तफ़ालू अफ़ालू नफ़ालू, वैसे मिसाल दे रही हूँ, ठीक? क्योंकि सिर्फ फ़ेल अमर मजज़ूम नहीं होता, बाकी अफ़ाल भी मजज़ूम होते हैं, बाकी के सिगे भी मजज़ूम होते हैं, आगे भी काम आएगी ये बात। तो
تو جو یہ والے صیغے ہیں تفعلو، یفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 4 صیغے، ان میں آخری حرف کو ساکن دے دینا یہ جزم کہلاتا ہے۔ کون سے 4 صیغوں میں آخری حرف کو ساکن کر دینا جزم کہلاتا ہے؟ اگر آخر میں نون نہ آ رہا ہو۔ ہاں، کون کون سے صیغے ہیں 4؟ تفعلو، فعلو، افعلو، ہوں، افعلو، افعلو، یفعلو، اور نفعلو۔ نفعلو۔ ٹھیک ہے، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، کون سے ہیں؟ ترتیب سے بتائیں۔ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، بولے شاباش۔ یفعل، یفعلو، 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 افعل، نفعل۔ افعلو، نفعلو۔ ہاں، تفعلو، اسی ترتیب نفعلو، سے دیکھیں صیغے ہمارے پاس، پہلے یفعلو کے صیغے ہیں، پھر تفعلو ہے، پھر افعلو ہے، پھر نفعلو پھر ہے۔ افعلو، پھر نفعلو ہے جی۔ تو آخری حرف کو ساکن کر دینا ان 4 صیغوں میں جزم کہلاتا ہے، ٹھیک؟ ہوں، پھر جتنے بھی نون والے صیغے ہیں سوائے جمع مؤنث کے، جتنے بھی نون والے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون آ رہا ہے، جیسے یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا، سارے کے سارے صیغے جن کے آخر میں نون آ رہا ہے سوائے جمع مؤنث کے، سوائے جمع مونس کے۔ جمع جمع مونس مؤنث کے، تفعلنا، یس یس، تفعلنا اور یفعلنا، تفعلنا، ویری گڈ، سوائے یفعلنا اور تفعلنا کے، سوائے، یفعلنا یفعلنا اور اور تفعلنا کے۔ تفعلنا کے۔ ہاں، ان کے نون کو گرا دینا جزم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی صیغوں میں سے نون کو گرا دینا جزم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حذف نون، ٹھیک ہے؟ جی، جیسے یفعلانی کا نون حذف کر دیں، یعنی تفعلانی کا، اسی طرح تفعلونا کا، تفعلینا کا، تفعلانی کا، ٹھیک ہے؟ ان سب کے نون حذف کر دینا کیا کہلاتا جزم حذف، ہے؟ جزم کہلاتا کہلاتا ہے، ہے۔ جزم۔ ٹھیک ہے؟ جزم ایک براڈ ٹرم ہے، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے پاکستانیوں کے جزم کا مطلب سکون ہے، حالانکہ جزم کا جی، مطلب سکون سم ٹائم تو ہو سکتا ہے، لیکن جزم کا مطلب ہر وقت سکون نہیں، نہیں ہوتا۔ نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ سو ہم نے تفعلو میں سے لام کو ساکن کر دیا، یہ جزم ہو گیا، باقی صیغوں میں سے نون کو گرا دیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ کون؟ جزم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی جزم صیغوں ہو میں جائے سے گا۔ نون کو گرا دینا کیا کہلائے گا؟ جزم۔ جزم ہو جزم۔ گیا۔ اب یہ جو مؤنث کے نون ہے یفعلنا اور تفعلنا، میں نے بتایا تھا یہ کہلاتے ہیں نون النسوہ، نسوہ، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ یہ نسوہ کے نون ہیں، یہ بہت ڈھیٹ نون ہوتے ہیں، یہ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، کہتا ہمیں ہلا کے دکھاؤ، یہ کبھی بھی نہیں گرتے، ٹھیک ہے؟ نون تو فعل النسوہ اپنی جگہ سے امر کبھی میں بھی بھی نہیں نہیں گریں ہلتے۔ گے، جی جی، فعل امر میں بھی نہیں گریں گے پھر۔ فعل امر پہ بھی نہیں گریں گے، وہ کہیں گے سانو ہٹا کے دکھاؤ تسی، ٹھیک ہے؟ خواتین کو ان کی جگہوں سے ہلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، نہیں ہلتی، ہلنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، جو جگہ چھوڑ دیتا ہے اس کی جگہ فل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سو نون النسوہ اپنی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ چلے اب یہاں پہ دیکھیں، ہم نے 2 سٹیپس تو اپلائی کر دیے کہ علامت مضارع شروع سے حذف کر دیا اور آخری حرف کو مجزوم جزم دے کر دی، دیا، جزم دے دیا، شاباش، مجزوم کر دیا، آخری حرف کو مجزوم کر دیا۔ مجزوم کر دیا۔ جو میں بولا کروں نا، میرے پیچھے ریپیٹ کیا کریں، الفاظ کو کھانا سیکھیں، اسے ہوگا بولنا آئے گا۔ چلیں، یہ اتنا کلیئر ہے۔ پھر تھرڈ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی علامت وہ ہو حروف علت ہو تو اس کو حذف کر دیں گے، کوئی حرف علت ہے ویسے؟ نہیں، ہاں، یہ بیچارے جو مثنیٰ کا الف جمع کا واؤ یہ نہ حذف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فعل ہی ختم ہو جائے گا معصوم، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے حرف علت کو حذف کرنے سے مراد، ٹھیک ہے؟ یہ والے برقرار رہیں گے حروف علت، کیوں؟ کیونکہ یہ صیغے کو شو کریں کہ کون سا صیغہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، مخاطبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے جی؟ جی باجی۔ چلیں، پھر اور کیا پڑھا ہم نے کہ اگر پہلا حرف ساکن ہو جائے تو شروع میں کیا کر دیں گے؟
अगर पहला तो हर्फ उस साकिन तो अगर हमज़तुल पहला वस्ल की ऐड साकिन कर है देंगे। तो उसके अलिफ लाम लगा देंगे। हाँ, अलिफ लाम नहीं, हमजतुल सिर्फ वसल लगा हमजतुल दें। वसल। ठीक है, हमजतुल पूरा वसल। अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम इसम की अलामत होती है। अलिफ लाम, जी, इसम की अलामत है। तो हमने सिर्फ हमजतुल वसल का इजाफा करना है। ठीक है, जी सिर्फ किस चीज का जी, इजाफा करना है मैमूना? हमजातुल वसल का हमजतुल वसल का। उसके साथ लाम तारीफ शामिल नहीं करना। नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा, क्योंकि लाम तारीफ किसकी अलामत है? फ़ैल की या इस्म की? इसम इसम की। इस्म की। इसम हम की कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ़ैल या इस्म? फेल, हम इसम की। फेल पढ़े। हम फ़ैल हम पढ़ रहे फिर हैं। पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे से देखें, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, हर जगह फा कैसा आ रहा है? साकिन। साकिन। साकिन साकिन। आ रहा है। तो अब तो हमें जरूरत पड़ गई अलामत वो हर्फ इल्लत लगाने की। हमजा क्या बने? हमजातुल हमजतुल वसल, वसल सॉरी, आएगा फिर। हमजतुल वसल आएगा। तो शुरू में आप हर जगह हमजतुल वसल का इजाफा करते हैं। हाँ जी, साइमा समझ आ रही है? साइमा साथ मौजूद है जी मेरे? जी जी। ठीक। फिर सवाल पैदा हुआ, हमजतुल वसल तो हमने लगा दिया, अब इसको हरकत कौन सी देंगे? चलें अब लिखे हमजतुल वसल को हरकत देने का कायदा अफ़आल में। बाजी जो तीसरा पॉइंट है, अगर आखिर में नून आ रहा हो तो सिवाय जमा मुअन्नस के इसको हज़फ करना जज़म कहलाता है। ये थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, हमारे पास आ रहे हैं ना, मुसन्ना के सीगे में, जमा के सीगे में, और इसी तरह मुखातिबा के सीगे में नून आ रहा है, जैसे तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, है ना? जी। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी अफ़आलुल खम्सा, उसमें ये वाले नून कवर होंगे। ठीक। ठीक है। सो ये जो अफ़आलुल खम्सा के नून होते हैं ना, ये जब जज़म होता है ना फ़िल, चाहे मजजूम हो चाहे मंसूब हो, अगर फ़िल मजजूम हो या मंसूब हो किसी न किसी रीजन की वजह से, तो ये नून हज़फ हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि इस्म मरफू होने की क्या क्या निशानी हो सकती है, कि उसके ऊपर दम्मा भी आ सकता है। ठीक है, इस्म मरफू हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा था, अगर वाव आ जाए, वाव भी मरफू की निशानी है ना, हालत रफ़ा की। हाँ जी। फिर इसी तरह अलिफ, अलिफ हालत रफ़ की निशानी है। जी। ठीक है, तो नून। जैसे मुख्तलिफ निशानियां हालत रफ़ की है ना, इसी तरह मुख्तलिफ निशानियां हालत जज़म की भी हैं। कि हालत जज़म में एक काम क्या होगा, कि आखिरी हर्फ साकिन साकिन हो होगा। जाएगा। दूसरी अलामत यह है कि अगर जितने भी अफ़ालुल खमसा के नून है वो हज़फ हो जाएंगे। फिर इसी तरह जी। अगर कोई हर्फ इल्लत आ रहा है वो भी हज़फ हो जाएगा। ठीक है, जैसे इश्तरा, यश्तरी। अब यश्तरी जब करेंगे तो इश्तरी या हज़फ हो जाएगा। क़ाल यक़ूलु क़ुल, अब यक़ूलु से जो क़ुल बना, वो किस वजह से बना, कि जितने भी मजूम होते हैं उसमें, वैसे यक़ूलु की तो इत्तिक़ा साकिरीन की वजह से हज़फ हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हर्फ मजजूम होता है ना, इसम फ़िल, सॉरी, फ़ाइल मजजूम होता है, तो उसका हर्फ इल्लत जो आखिर में आ रहा होता है वो भी हज़फ हो जाता है। ठीक है, जी। हाँ जी। तो ये तीन बातें आती हैं मजजूम में, कि आखिरी हर्फ को या तो साकिन कर देना, या फिर जो फ़ालुल खमसा उसके नून को हज़फ कर देना, या फिर अगर आखिर में हर्फ इल्लत आ रही होगी उसको हज़फ कर देना। ठीक है, जी। चले हमज़तुल वसल को हरकत देने का कायदा। हमज़तुल वसल को अफ़ाल में हरकत देने का कायदा, ये ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हम अफ़ाल पढ़ रहे हैं ना। हम्म, हेडिंग दे दी। जी देने का कायदा। चले, अगर हमने देखना है थर्ड लेटर, हमने किसे देखना है? थर्ड लेटर को। थर्ड लेटर को। अगर थर्ड लेटर मदमूम होगा, ठीक है, अगर थर्ड लेटर मजमूम होगा। मदमूम होगा, तो हमने हमज़तुल वसल को दम्मा दे देनी है। जी, दम्मा दे देनी है। ठीक है, थर्ड लेटर मदमूम होगा तो हमने हमज़तुल वसल को दम्मा दे देंगे। दम्मा दे देना है।
दम्मा देते हैं। तजवीद के स्टूडेंट्स को तो ये कायदा आता है, लेकिन फिर भी हमने रिकॉर्ड करना है कि क्या करना है। थर्ड लेटर पे अगर दम्मा होगी तो हमज़तुल वसल को गम्मा दे देंगे। दम्मा दे दमा देंगे। दे देंगे। अगर थर्ड लेटर पे कसरा होगी तो हम क्या दे देंगे, कसरा दे देंगे। कसरा दे देंगे। कसरा अगर देंगे। बिल्कुल कसरा होगी तो कसरा दे देंगे। ठीक है, दम्मा की सूरत में दम्मा, कसरा होगी तो कसरा। 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 फतहा होगी तब भी कसरा दे देंगे। जी। ठीक है, दम्मा जी की जी सूरत में जी दम्मा, सही। कसरा की सूरत में कसरा, और फतहा की सूरत में भी कसरा कसरा। हो गई। कसरा दे देंगे। तरह। कसरा। अफ़आल में हमज़तुल वस्ल पे फतहा नहीं आती होती। जी। जी जी जी। फतहा हमज़तुल वस्ल में सिर्फ लाम तारीफ पर आती है, अल पे। ठीक है, जैसे अल जी। किताब, अल कलम, वो इसम की निशानी है। सो अफ़आल में कभी भी हमज़तुल वस्ल पे फतहा नहीं। नहीं नहीं आती आती। है। नहीं आएगी। मैं थर्ड तो लेटर उसको पे समझी थी कि दम्मा, शायद कसरा नहीं आएगी, हाँ नहीं नहीं, लेकिन मैं फतहा उसमें नहीं आती। कंफ्यूज हो गई। मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक, वो आप ना अल से याद रखें, फिर इंशाल्लाह याद रह जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, गले में, कान में, हर तरफ खुजली हो रही है। चलिए, सो अब यहाँ पे देखें, थर्ड लेटर है आइन, पहला हर्फ है हमज़तुल वस्ल, दूसरा हो गया फा, तीसरा हो गया आइन। तो आइन पे चूंकि फतहा है, लिहाजा हर जगह हमज़तुल वस्ल को क्या चली जाएगी, कसरा। हाँ। कसरा। आ, हाँ हाँ हाँ, बोले मुना। जी कसरा जाएगी क्योंकि वो फतहा तो आएगी नहीं। यस, तो चूंकि थर्ड लेटर पे फतहा है, लिहाजा हमने हमज़तुल वस्ल को कसरा कसरा देनी दे है। देना। कसरा देनी है। तो क्या प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी, इफ़ाल। इफ़अल। वेरी गुड। मुसन्ना की सीगे में तफाला। तफा। इफ़अला। इफ़ालानी। हाँ, इफ़ाला। इफ़अला। फिर तफ़अलूना, इफ़ालू। इफ़अलू। इफ़अलू। अलूना। नून पढ़ेंगे, नहीं। नहीं। ये नहीं। हज़फ हो जाएगी। ठीक है, सो इफ़अ, लू। इफ़अलू। इफ़अलू। फिर तफ़अलीना, इफ़ाल। इफ़अली। 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 ठीक है, इफ़ाली। इफ़अली। हाँ, ये मुखातबा का नून, हम इसको वो मुखातबा की या है, ये मुखातबा के सीगे को शो कर रही है, तो इसको नहीं हज़फ करना, इफ़अली। ठीक है, या के साथ। फिर तफ़अलानी, इफ़अला। इफ़अलान। इफ़अला। फिर तफ़अलना, इफ़अलना। 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 इसका नून गिरने से इनकारी है। ठीक है, इसके नून ने मना कर दिया कि मैं नहीं गिर रहा। क्योंकि ये औरतों का नून है, वो डीट होती है। बिल्कुल, नून उन्नीस में बहुत ढीठ है, गिरने नहीं देता खुद को। चले, अब आप लोग ऐसा करें, जरा एक आध मिसाल करें। जैसे है नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। पहले तो इसके हाजिर की सीखे लेंगे आप लोग। ठीक है, फिर हाजिर की सीखों पे ये सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। चलो शाबाश, 2 मिनट है, सॉल्व करें। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यंसुरु के हाजिर की सीगे अपने सामने लिख लेना है। तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुल्लाह। देखो, अल्लाह यस्लिह वालकुम। ठीक है, फिर क्या करना है। सबसे पहले अलामत मुज़ारे हज़फ कर दी शुरू में से, हर जगह से नामते हैं वो। ता हज़फ कर दिया। ता को हज़फ कर देंगे। ठीक है, ता हर सबने हज़फ कर दिया। जी। जी। ठीक है, फिर क्या करना है, आखिरी हर्फ को मजजूम करना है। तंसुरु को कैसे मजजूम करेंगे, आखिरी हर्फ को रो को साकिन करके। साकिन कर देंगे। उनसुर। हाँ हाँ, अभी सिर्फ रॉ को साकिन कर देते हैं। ठीक है, जी। फिर हमज़तुल वस्ल को लगाएंगे बाद में। अच्छा, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, इन सब के सब में क्या कर देंगे, कैसे मजजूम करेंगे। आखिरी हरफ को नून को साकिन कर देंगे। हाँ, साकिन करेंगे, हज़फ करेंगे। हज़फ। हजफ कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, इन चार सीगों में से नून को हज़फ कर देंगे। क्या तंसुरना का नून हिलेगा, नहीं। नहीं। अ, अ, ठीक है,
नून निस्वा है, नून निस्वा अपनी जगह को नहीं छोड़ता होता। चले अब मुझे जी। बताएं, जब हमने अलामत मुजारे हज़फ की तो पहला हर्फ साकिन था या मुतहरिक? पहला हरफ तो मुतहरिक था ना, ये ना, जैसे अगर कफ हमने वाली है अलामत तो। मुजारे हज़फ कर दी फिर, जी। क्योंकि अलामत फिर मुजारे तो नहीं आनी ना। साकिन था। ये साकिन। फास्ट, ये साकिन हो गया। हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमने अलामत मुजारे जब हज़फ कर दी तो पहला हर्फ साकिन हो गया। अब क्या साकिन हर्फ से कलमा की इब्तिदा मुमकिन होती है? नहीं। नहीं, फिर नहीं, हमजातुल वसल लगाएंगे फिर। बिल्कुल। तो इस वजह से शुरू में हमने हमजतुल वस्ल का इजाफा कर दिया। ठीक है, हर जगह हमजतुल वस्ल का इजाफा कर दिया। अब मुझे बताएं, हमजतुल वस्ल को हरकत कौन सी देंगे? तीसरे हर्फ को देख के बताएं। दम्मा। हम्म। दमा। ठीक है। तीसरे पे दम्मा है तो दम्मा दे देंगे, अगर बिल्कुल। वो कसरा है तो कसरा दे देंगे, अगर फतह है तो तब भी कसरा देंगे। हाँ जी, सो यहाँ पे देखिए तंसुरु। ठीक है, पहले हमजतुल वस्ल हो गया, दूसरा नून हो गया, तीसरा स्वाद हो गया। तो स्वाद पे चूंकि दम्मा है, लिहाजा हमजतुल वस्ल को हर जगह दम्मा। दम्मा देंगे। दमा देंगे। दम्मा उनसुरु। चली जाएगी। सोरू उनसुर। शुरू हो जाएगा, रा साकिन कर देंगे जमीना। उनसुर। रात साकिन कर देंगे उनसुर। उनसुर। शाबाश। फिर तंसुरानी से कैसा बन जाएगा? उनसुर उनसारा। ना। उनसुरा। शाबाश। फिर तंसुरी तंसुरूना से कैसा बन जाएगा? उनसुरु। अंसुरु। उनसुरू। उनसुर। फिर तंसुरीना से कैसा बन जाएगा? उनसरी। उनसुरी। हाँ, उनसुरी। उनसुरी। ठीक है, सामा स्वाद की उनसुरी। हरकत नहीं हिलाएंगे, उनसुरी। उनसुरी। हाँ, फिर तंसुरानी से कैसा बन जाएगा? उनसुरा। 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 फिर तंसुरना से कैसा बन जाएगा? उनसुरना। उनसुरना। उनसुर। सुरना। उनसुरना। शायद से कुछ समझ आई? जी, थोड़ी बहुत चले थोड़ी गई। बहुत अब मजीद एक आध मिसाल करते हैं ना, तो मजीद भी समझ में आएगी। जैसे जलसा यजलिसु। ठीक है, यजलिसु। शाबाश, इन सब को फॉलो करें, फिर हम आते हैं इसको सॉल्व चलो। करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? फेल मुजारे के हाजिर के सिगे लिए। तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसूना, तजलिसीना, तजलिसानी, तजलिसना। फिर क्या किया? अलामत मुजारे हज़फ की हर जगह से। ठीक है, कलर चेंज नहीं किया मैंने। चलिए शुरू में से अलामत मुजारे हज़फ की। ता हर जगह से ता रिमूव ता। कर दी। तारे मूव कर दी, बिल्कुल। फिर आखिरी हर्फ को जज्म दे दी। कैसे देंगे? यजलिसु में, तजलिसु में। इजलिस। हमजातुल वसल लगा के तो कसरा दे देंगे, क्योंकि नहीं ऊपर वो। नहीं, मजजूम। मजजूम पहले हमने मजजूम करना है, फिर हमजतुल वसल की कहानी बाद में आएगी। ठीक है, आखिरी हर्फ को जज्म देनी है। आखिरी हर्फ को कैसे जज्म देंगे मैमूना तजलिसु में? सीन को साकिन करके। कैसे देंगे मैमूना? सीन को साकिन कर दे, सीन को साकिन कर साकिन देंगे। करके। बाकी तजलिसानी, तजलिसूना, तजलिसीना, तजलिसानी, इन चार सीगों में कैसे वो करेंगे मजजूम? वो आखिर में नून हजफ करेंगे। जी, आखिर में नून हज़फ कर देंगे। शाबाश। ये स्टेप करने के बाद हम देखेंगे हमज़तुल वस्ल की जरूरत है क्या नहीं है। ठीक है, जी। तो अगर हम जब पहला पहला हर्फ हो, अगर वो साकिन हो, तो फिर हमज़तुल वस्ल का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे बताएं, हमज़तुल वस्ल का इजाफा करने की जरूरत है? जी है। हाँ जी जी, जी। क्योंकि जीम कैसा था? साकिन हो गया। साकिन हो गया, तो हर जगह हमने हमज़तुल वस्ल का इजाफा कर दिया। अब मुझे बताएं, हमज़तुल वस्ल को हरकत कौन सी देंगे? कसरा। 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 कसरा, क्योंकि लाम पे कसरा है। ठीक है, थर्ड लेटर पे कसरा है। हर जगह हमज़तुल वस्ल को क्या चली जाएगी? कसरा। कसरा। कसरा चली जाएगी। कसरा चली जाएगी। चलिए जी, शाजिया पढ़ के सुनाए। यहाँ पे होगी इजलिस। 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 इजलिस और इजलिसा। हाँ, इजलिसा। इजलिसा। ठीक है। इजलिसु। इजलि इजलिसु। हम्म। इजलिसु। और इजलिस इजलिसु। हम्म। इजलिसा इजलिसु। ठीक है। हाँ, फिर आगे आगे ये हाँ, मुखातिबा किसी में। इजलिसा इजलिसु। फिर हाँ आ गया हाँ, ये तो मुज़क्कर इजलिसी। के हो गए ना। मुअन्नस के लिए तजलिसीना से कैसे बनाएंगे? इजलिसी। इजलिसी। शाबाश। फिर तजलिसानी। इजलिसा। इजलिसा। फिर तजलिसना से। फिर इजलिस। इजलिसना, ये तो फिर
टोटल बन गया। एजिडिस्ना, वैसा का वैसा रहेगा। चलिए, डन हो गया, ठीक समझ है। आ गई है? अब खुद से प्रैक्टिस कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। जी या बाजी। हम्म, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि मैंने फ़ेल मुज़ारे के जितने सीगे कराए, चाहे मफ़तूहुल आइन हो, चाहे मकसूरुल आइन हो, चाहे मضमूमुल आइन हो, सब के फ़ेल अमर बनाकर लाने हैं। सबके हाजिर के सीगे लिए उन सब के फ़ेल अमर बनाने, मेरे पास सारे हर हरूफ लिखे हुए हैं। कल पहले वो चेक करूंगी, फिर इंशाल्लाह आगे कराऊंगी। हो जाएगा इंशाल्लाह काम। जी बाजी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।